السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں سدرا میر۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کی، جہاں صدر موبائل مارکیٹ میں ایک شخص عمارت کی چھت سے گر کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ مرنے والا شخص دکاندار تھا یا کوئی گاہک، پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، کون تھا یہ شخص؟ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی دیکھیں فیصل، میں اسی اسپاٹ پر جو ہے وہ اس وقت موجود ہوں۔ یہ صدر موبائل مارکیٹ میں واقع اسٹار سٹی مال ہے۔ اس کی 6، 7ویں اور 8ویں منزلوں پر ویئر ہاؤسز ہیں، اور وہاں پر میں ان کی باؤنڈری والز آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ وہ بہت بالکل نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ اس کی باؤنڈری وال بنائی گئی ہیں۔ میرے کیمرہ عمران شاہد آپ کو دکھائیں، یہیں سے جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ گرا ہے۔ پہلے یہ آ کر جو ہے وہ درخت جو نیچے بالکل بنے ہیں ان درخت پر جو ہے وہ آ کے گرا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے یہ زمین پر آ کے گرا ہے۔ اس شخص کی شناخت تاحال جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس یہ بتاتی ہے کہ 24 سے 25 سالہ یہ شخص ہے، لیکن اس کی شناخت جو ہے وہ تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ دکانداروں سے پوچھا گیا ہے صدر موبائل مارکیٹ کے، وہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل بے خبر دکھائی دے رہے ہیں، کوئی اس کی شناخت نہیں آ پا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں، ملازمین، ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ اس شخص کو جانتے ہیں، تو انہوں نے بھی لا علمی ظاہر کی ہے۔ یہ جو اسٹار سٹی مال کی بیک سائڈ کا ایریا ہے، یہ بیسیکلی اس کی اوپننگ جو ہے وہ پارسی کمپاؤنڈ میں ہے، اور یہ شخص بھی جو ہے وہ پارسی کمپاؤنڈ میں ہی آ کے گرا ہے۔ ابھی بھی جو ہے وہ تفتیشی حکام جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے، اس جگہ کا معائنہ کیا ہے کہ کیا کسی شخص نے اس کو یہاں سے گرایا تو نہیں یا دھکا تو نہیں دیا، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ لیکن تحقیقات تب آگے چلیں گی جب اس شخص کی شناخت جو ہے وہ سامنے آ جائے، تاکہ پھر اس کے گھر والوں سے جو ہے وہ رابطہ ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ وہ شخص یہاں پر کیا کر رہا تھا۔ جی احمد، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، خبر پہ نظر رکھیے گا، آپ سے اپڈیٹس مزید لیں گے۔ اور بلیٹن میں اب بات کریں گے ملک میں جاری سیاسی ہلچل کی۔ اس کے علاوہ سرد موسم میں سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مفاہمت کو خدا حافظ کہہ کر مزاحمتی سیاست شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کل سے سڑکوں پر مظاہروں کا باقاعدہ آغاز کرے گی۔ سندھ میگا منی لانڈرنگ کیس میں گھیرا تنگ، زرداری کی گرفتاری کے خدشات پر بلاول کا اعلان جنگ۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، مزاحمتی سیاست کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کل سے سڑکوں پر مظاہروں کا آغاز کرے گی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، اب سیاسی انتقام برداشت نہیں کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول نے JIT رپورٹ مبینہ طور پر لیک کرنے والے وزراء کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ سو موٹو ایکشن لے، اور جو منسٹرز انوالوڈ ہیں ان کے خلاف کنٹیمپٹ کا ایکشن ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ FIA کے نیچے آتا ہے، اور FIA انٹیریئر کے منسٹری کے نیچے آتا ہے، اور انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ خان صاحب ہے، تو اس کے خلاف یہ ایکشن ہونا چاہیے۔ سندھ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل میں آصف زرداری اور فریال تالپور کل بینکنگ کورٹ میں پیش ہوں گے۔ عبوری ضمانت میں توسیع نہ ہوئی تو دونوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بھرپور مزاحمت کے لیے پیپلز پارٹی نے ارکان پارلیمان کو عدالت پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ صورتحال کے پیش نظر جیالے بھی سرگرم ہو گئے ہیں، اور سوشل میڈیا پر کارکنوں کو صبح بینکنگ کورٹ پہنچنے کے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب احتجاجی لائحہ عمل پر مزید غور کے لیے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ 26 دسمبر کو بلاول کی زیر صدارت 9 ڈیروں میں بیٹھک ہوگی۔ مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں کہ اجلاس میں تاریخی فیصلے کیے جائیں گے۔ مفاہمت کے بادشاہ سے کھلاڑیوں کی مزاحمت۔ کراچی سے بھی PTI کے کھلاڑی آصف علی زرداری کے خلاف قانونی جنگ لڑنے نکل آئے۔ الیکشن کمیشن سندھ میں زرداری کے خلاف دائر درخواست منظور ہو گئی۔ فیصل خان کی رپورٹ۔ ایک طرف کھلاڑی،
दूसरी तरफ जियाले तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में ऐसी ठनी कि कानूनी जंग शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ कराची के खिलाड़ियों ने जरदारी को वापस पवेलियन भेजने की ठान ली। इलेक्शन कमीशन सिंध में नाअहल करार देने के लिए दरखास्त दे दी। कहा गया कि आसिफ अली जरदारी न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट के मालिक हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जमा असासों में अपार्टमेंट का जिक्र ही नहीं। कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो कि हमें मिले हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, और जब हमने उनको उनके फॉर्म बी के अंदर चेक किया जो कि उन्होंने अपनी नॉमिनेशन जमा कराई थी, उसके अंदर उन्होंने उसकी सबमिशन नहीं कराई है। जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर तबाही फेरी है उनको अब जेलों में जाना पड़ेगा, माफी नहीं है। सिंध की ओपोजिशन का मिशन संभालने वाले फिरदौस शमीम नकवी भी इसी मिशन पर हैं। जो आर्टिकल 62(1)(f है वो बुनियादी तौर पर अगर कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं रहता तो उसको नाअहल किया जाता है। ये वही क्लॉज है जिसके तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया है। इलेक्शन कमीशन सिंध ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दायर दरखास्त मंजूर कर ली। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ फैसल खान, समा, कराची। एहतसाब के अमल पर सियासी बयानबाजी ने नए महाज खोल दिए। कराची में पीटीआई के खुर्रम शेर जमान पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो इस्लामाबाद में जियालो ने भी बड़े खिलाड़ियों के असासों की तफसीलात मांग ली। उस्मान खान की रिपोर्ट। एक दूसरे की क़यादत को नाअहल करार दिलाने का टेस्ट मैच शुरू। तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान ने कराची में इलेक्शन कमीशन से रजू का छक्का लगाया तो पीपल्स पार्टी वालों ने खिलाड़ियों की अहम विकेटें इस्लामाबाद में निशाने पर रख ली। वजीर आजम और वुज़रा के असासों की तफसीलात लेने जियालो का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुँच गया। हमें इमरान खान फैसल वावड़ा के एसेट्स और लायबिलिटी की तफसील मांगी है, तफसीलात मांगी है। इमरान खान साहब की हमशीरा के मुतालिक जहांगीर तरीन के जो बेनामी अकाउंट्स डिटेल्स हैं वो हमको दी जाए। जियाले कहते हैं अंपायर न्यूट्रल हो तो जीत के लिए तैयारी पूरी है। ऐसी अकाउंटेबिलिटी जो पॉलिटिकल विच हंटिंग न हो और जिसमें खा हुकूमत का नुमाइंदा हो या अपोजिशन का हो, सबके खिलाफ एक ही कानून के तहत एक ही तरीके के साथ अकाउंटेबिलिटी की जाए। जो रेफरेंस दायर करना चाहता है करे, हम कानूनी तरीके के साथ उसका मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची में तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को दिलासा देकर रवाना कर दिया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। जरदारी साहब से एक आध अपार्टमेंट को मंसूब करना उनकी तौहीन है। फवाद चौधरी कहते हैं मामला चल रहे हैं, आगे चलकर मजीद पता चलेगा कि जरदारी साहब ने अपने असासों में क्या क्या जाहिर नहीं किया। पीपल्स पार्टी के एहतजाज के सवाल पर फवाद चौधरी ने शेर पढ़ दिया। फैसला किया गया जो 2 MNAs हैं PTM के मोहसन दावड़ और अली वजीर साहब, इनको नाम जो है वो डिलीट कर दिए गए ECL से। जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस तो फाइल कर दिया गया। ये तो लंदन में एक आध अपार्टमेंट पता चल गया है। एक आध अपार्टमेंट तो जरदारी साहब से मंसूब करना वैसे ही तौहीन है। 2006 में तो ये खरीदा गया, जो आखिरी टैक्स इसका भरा गया वो तो 2017-18 में भरा गया। न तीर चलेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। पहली सियासी जमातें होंगी जो इसलिए जलसे करेंगी कि हमने जो चोरी की है वो हमें माफ़ कर दीजिए। इन्हें तो खुश होना चाहिए, कंपनी रहेगी अडयाला जेल वगैरह में, क्या प्रॉब्लम। किसी भी हुकूमती वजीर ने JIT के ऊपर बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में सील्ड रिपोर्ट जो है वो जमा हुई है। सबसे बेहतर पीपल्स पार्टी वालों को पता है कि उस किताब में क्या है, इसलिए घबराए हुए। पनामा लीक्स में पहली सजा पर क्यों निकाला का शोर हुआ। नैब केसेस में पहली सजा पर इंतकामी कार्रवाई की बातें हुई। दीगर 2 नैब केसेस में 24 दिसंबर को अगर सजा हो गई तो करना क्या है और कहना क्या है, इसकी मंसूबाबंदी भी पार्लियामेंट हाउस में कर ली गई है। उस्मान खान की रिपोर्ट। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब के मजीद 2 रेफरेंसेस पर 24 दिसंबर के अदालती फैसले पर रद्द अमल क्या होगा। हिकमत अमली बनाने के लिए शरीफ बरादरान ने पार्लियामेंट हाउस में सर जोड़ लिए। 1-to-1 बैठक में सारा मंसूबा बना लिया। दोनों ने बाद में पार्टी इजलास की मुश्तरका सरबराही की। एहतसाब अदालत का फैसला हक में आया तो खामोशी इख्तियार की जाएगी और नवाज शरीफ 30 दिसंबर के तासीसी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। हतमी तैयारी के मामलात एडवाइजरी बोर्ड देखेगा। कुछ फैसले किए गए हैं, उम्मीद है कि पाकिस्तान की सियासत पे अच्छे मस्बत और दूरस असरात मुरतब होंगे। हमेशा पाकिस्तान की तरक्की को बहुत आगे बढ़ाया है। खिदमत के जज्बे से अब भी बहुत
सरशार है। फैसला खिलाफ आने की सूरत में ऐवानों के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली गई। अवामी तहरीक का आगाज वर्कर्स कन्वेंशन से ही कर दिया जाएगा। सियासी दिफा के लिए महंगाई जैसे अवामी मसले को ढाल भी बना लिया गया। महंगाई है, गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन करनी और गरीब आदमी की महंगाई की वजह से वाकई कमर टूट गई है और ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। नवाज शरीफ अपने खिलाफ फैसला आने पर किस बुनियाद पर अवामी मुहिम शुरू करेंगे, जहांगीर तरीन ने सवाल उठा दिया। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, GIT ने जाली अकाउंट्स के हवाले से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। बहुत बड़ी करप्शन पकड़ी गई है। किस बुनियाद पे शुरू करेंगे? अदालत में गए, कितने तवील केस चला है, उसके ऊपर उनको गवाहियाँ हुई हैं, उनको पूरा मौका दिया गया है कि वो अपनी सफाई पेश करें। अगर उसके बाद एक जज फैसला करेगा कि ये कसूरवार हैं, ये गिल्टी हैं, तो फिर अवामी प्रोटेस्ट का तो मुझे समझ नहीं आती। GIT की रिपोर्ट जो है वो सील रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है आसिफ जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स के हवाले से। बहुत बड़ी एक करप्शन पकड़ी गई है जाली अकाउंट्स के सिलसिले में, जहाँ अरबों रुपए जो थे वहाँ से आते, रेल फेल था अरबों रुपए का। एहतसाब का जो दायरा है, जो घेरा है, तंग हो रहा है, तो ये ज़रूर अपनी पैसों को बचाने के लिए, अपनी जायदाद को बचाने के लिए सियासी तौर पर दबाव डालेंगे। एहतसाब अदालत की जानिब से नैब रेफरेंसेस का फैसला। नवाज शरीफ के हक में आया तो खामोशी, अगर खिलाफ आया तो एहतजाज। नून लीग की इस हकमत अमली पर अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट में जानिए। एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की सूरत में नून लीग ने दोबारा सड़कों पर आने की ठान ली। अरकान पार्लियामेंट इस हिकमत अमली को कैसे देखते हैं, उनसे जानते हैं। ये उनका सियासी हक है, अगर वो कोई तहरीक चलाना चाहते हैं तो जाहिर है कोई उनको रोक तो नहीं सकता। उनको कोई और रास्ता है ही नहीं, यही रास्ता नजर आता है कि तहरीक चलाए। ये भी उस पर कामयाब नहीं होंगे, लोग उसके साथ खड़े नहीं होंगे। हर बंदे को हक होता है एहतजाज करे। उन्होंने फेस सेविंग के लिए हाथ पैर तो मारने हैं, एहतजाज करना चाहते हो तो अपना शौक पूरा कर ले। सियासी पार्टी जब मुजाहरों का, एजिटेशन का कोई फैसला करती है तो यकीनन वो अपने फायदे का सोच कर करती होगी। टेम्पो डाउन हो चुका है और मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर कोई फायदा होगा। नवाज शरीफ साहब की अगर गिरफ्तारी होगी तो उसका रद्द अमल तो आएगा, ये तो फितरी सी बात है। अपोजिशन वाले कहते हैं एहतजाज करना हर जमात का आईनी हक है, लेकिन हुकूमती अरकान के मुताबिक नून लीग की सियासी इनिंग्स खत्म हो चुकी है। सड़कों पर आने से कुछ नहीं मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ वहाब कामरान, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, सियासत में करप्शन का आगाज नवाज शरीफ ने किया। करप्ट सियासतदानों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, बहुत जल्द सब इकट्ठे हो जाएंगे। मैं हैरान हूँ, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं करप्शन जो है वो मुझे छू के भी नहीं गुजरी। जनाब वाला, आप तो करप्शन के साथ जनाब नवाज शरीफ साहब और आपका खानदान वो इस तरह है करप्शन के साथ। जजेस को खरीदने की सियासत, जनरलों को खरीदने की सियासत, जर्नलिस्ट को खरीदने की सियासत, सबसे पहले ये नवाज शरीफ साहब के खानदान और नवाज शरीफ साहब की डिस्टिंक्शन है। आसिफ जरदारी साहब को हीरो के तौर पे शो करते थे, जोड़ तोड़ का माहिर। नहीं जनाब, वो तोड़ फोड़ के माहिर हैं। जब इनका 5 साल का टेन्योर था, कानों को हाथ लगाने को जी चाहता है। जो लुट मार मची हुई थी, अब नवाज शरीफ साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, जरदारी साहब का न दिल लग रहा है न दाल लग रहा है। कौमी असेंबली के इजलास की कार्रवाई इस वक्त जारी है। शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। कौमी असेंबली के इजलास की कार्रवाई में शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे थे। इससे पहले भी दीगर रहनुमाओं की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। अहम मामलात आज कौमी असेंबली के इजलास में ज़ेर बहस रहे हैं। नैब का साद रफ़ीक को आज रात इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। साद रफ़ीक को सब जेल में रखने का फैसला किया गया है। मजीद बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक मजीद? जी बिल्कुल, जैसे ही स्पीकर की जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं तो उसके बाद उनको इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला किया जा रहा है। जरा का कहना है कि नैब आज ही ख्वाजा साद रफ़ीक को इस्लामाबाद मुंतकिल करेगी और ख्वाजा साद रफ़ीक को सब जेल में रखने का फैसला किया गया है। पार्लियामेंट लॉजिस में साबिक वफाकी वजीर की को रिहाइश का जो दी गई है और उसी को सब जेल में डिक्लेयर किया गया है और ख्वाजा साद रफ़ीक को बदरिया हवाई जहाज आज किसी वक्त जो है वो मुंतकिल किए जाने का इम्कान है और बाकायदा तौर पर जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो नैब हुकाम को भी रिसीव होगा। ठीक है उस्मान, आपने डिटेल्स दी, आपका शुक्रिया।
قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں جنوبی صوبے کے حوالے سے بل متعارف کروا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا وعدہ کیا۔ حکومت صوبے کے قیام کا وعدہ پورا کرے، ہم سپورٹ کریں گے۔ یہ بل انٹروڈیوس ہم فوری طور پر کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ، اس کا قیام فی الفور عمل میں لایا جائے اور بھاولپور کا صوبہ اس کو ریسٹور کیا جائے۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں آپ کی توسط سے کہ وہ آئیں، ہمارے اس بل کو وہ سپورٹ کریں۔ اب امتحان ان کا ہے، اب یہ اس سے بھاگے نہیں، اب آگے آئیں اور جو عوام سے وعدہ کیا ہے ہم بھرپور ان کی اس معاملے میں ہم تعاون کریں گے تاکہ 3.5 کروڑ عوام جو جنوبی پنجاب کے ہیں ان کی جو خواہشات ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہوئے اس کے اوپر ہم فی الفور اقدامات اٹھائیں۔ پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ نے بھی اپوزیشن لیڈر کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کہتے ہیں پی پی پہلے بھی جنوبی صوبے کے حق میں تھی، اب بھی ہے، اس معاملے میں مدد دینے کو تیار ہے۔ صوبے کی بات ہوئی ہے، چیمہ صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر نے وعدہ کیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے تو ہمارا آپ سے اس ہاؤس سے پاکستان پیپلز پارٹی جو پہلے بھی اس حق میں تھی سرائیکی صوبے کے لیے، ہم اس کے حق میں ہیں، اس کو لے آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بغیر اپوزیشن اس بات پہ متفق ہے کہ بغیر کسی کمیٹی بنائے ہوئے آپ لے آئیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم اس میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزارت خزانہ نے توانائی شعبے کے مالی مسائل حل کرنے کے لیے سکوک بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بانڈ سے 150 ارب روپے سے زیادہ حاصل ہوں گے۔ مزید بات کریں گے شکیل احمد سے۔ شکیل، اجرا کب سے ہوگا ان کا؟ ماہ جنوری میں یہ سکوک بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 150 ارب روپے سے زیادہ حکومت کو حاصل ہونے کا امکان ہے، کیونکہ توانائی کے شعبے میں جو گردشی قرضہ ہے وہ 1300 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ اس میں 690 ارب روپے کا نیا گردشی قرضہ ہے، جبکہ پاور ہولڈنگ کمپنی جو ہے اس کے ذمہ پہلے سے 620 ارب روپے کا پرانا قرضہ شامل ہے۔ اب کمپنی اس کو پیمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے حکومت کو وسائل درکار ہیں۔ اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ سکوک بانڈ کے ذریعے مزید قرضہ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بانڈز جنوری میں جاری کیے جائیں گے۔ شکیل احمد، آپ کا شکریہ۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں ممبئی کا جناح ہاؤس پاکستان کی ملکیت ہے، بھارتی حکومت کی جانب سے کسٹڈی کا فیصلہ منظور نہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور OIC کے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک وزیر دفاع نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ترکی کے وزیر دفاع نے GHQ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ترک وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ ترک وزیر دفاع نے GHQ میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ بات کریں گے کراچی کی ایمپریس مارکیٹ کی، جہاں تجاوزات کے خلاف ہوا آپریشن تو وسیم اختر کے بیان نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ کہتے ہیں ایمپریس مارکیٹ کے اندر منشیات فروش موجود تھے، مارکیٹ میں اسلحہ بھی ہوتا تھا۔ جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایمپریس مارکیٹ کے اندر ہوتا کیا تھا، جو ریموو کیا ہے میں نے، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ غلط ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی وہاں، ڈرگز تھے وہاں، آرمز تھے وہاں۔ اب بولوں میں آپ کو، وہ گاڑیاں رکتی تھیں کنٹری سے آگے، وہاں جو جو چیزیں نکلتی تھی وہ کراچی کو نقصان پہنچاتی تھی۔ تو یہ چیزیں بھی تھی نا، صرف ایک اینگل سے نہیں دیکھیں اس چیز کو۔ میئر کراچی وسیم اختر کے انکشاف پر کراچی کے تاجروں کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں اگر اسلحہ یا منشیات فروخت ہوتی تھیں تو خریدنے والا اور چلانے والا کون تھا؟ جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایمپریس مارکیٹ کے اندر ہوتا کیا تھا، ڈرگز تھے وہاں، آرمز تھے وہاں۔ اب بولوں میں آپ کو، میئر کراچی وسیم اختر نے غضب کہہ دیا، لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ تاجر تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا تھا تو یہ اسلحہ خریدنے اور چلانے والا کون تھا؟ یہ اسلحہ لانے والا کون ہے؟
کس کے لیے لایا جاتا ہے اور کون استعمال کرتا ہے. اگر ایسا کوئی تھا تو ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. ویسے اگر اسلحہ یا منشیات تھی تو ایمپریس مارکیٹ میں بیٹھے دکانداروں کو کچھ تو معلوم ہوگا. میرے کو یہاں 35 سال ہو گئے ہیں, یہاں نہ سنا نہ دیکھا. بڑی مارکیٹ ہے, منشیات بکتی تو ہم خود پکڑ کے دے دیتے پولیس کو, ایسی کوئی بات نہیں. میاں صاحب کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے. جو لوگ اس کے طالب ہوتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے مل جاتی ہو, لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. یہی نہیں, پولیس کو بھی آج تک ایسی کوئی شکایت نہیں ملی. وی کین ناٹ بی اسپیسیفک اباؤٹ دس اینٹی انکروچمنٹ آپریشن اینڈ سے کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ یہاں پر ویپن تھا یا ویپن ملا یا منشیات کا کوئی ڈین تھا. کوئی ماننے کو تیار نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کراچی چیمبر میں ایمپریس مارکیٹ کے تاجر وسیم اختر کی ماننے کو تیار نہ تھے. پلیز ایک سیکنڈ میں بات کر لوں, یہ طریقہ نہیں ہے. تجاوزات کے خلاف آپریشن پر میئر کراچی تاجروں کو سمجھاتے رہے, لیکن تاجر ایک کے بعد ایک سوال برساتے رہے. نجی اسکولز کا زائد فیس وصول کرنے سے متعلق کیس. سندھ ہائی کورٹ نے اسکولز مالکان کو 14 جنوری کو تفصیلی فیس سٹرکچر پیش کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ والدین پریشان نہ ہوں, اسکولز پر آڈیٹر تعینات کر دیں گے. طلبہ کے لیے خوشخبری, فیس نہ دینے پر امتحان میں نہ بٹھانے کا کہنے والی اسکول انتظامیہ کو بتا دیں, عدالتی حکم آ گیا ہے کہ بچے اسکول جائیں, امتحانات میں بھی حصہ لیں. اگر کسی بچے کو تنگ کیا تو سخت کارروائی کریں گے. سندھ ہائی کورٹ میں نجی اسکولز کی جانب سے زائد فیس وصولی کے کیس میں عدالت نے ریمارکس دیے, ہم بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. والدین کے وکیل نے کہا اسکولز نے 2 قسم کے فیس اسٹرکچر عدالت میں پیش کیے. جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے, والدین فکر نہ کریں, ہم اسکولز پر آڈیٹر بٹھائیں گے, حقائق اور اعداد و شمار آنے دیں, پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے, اسکول فیس اسٹرکچر کو محکمہ چیک کرے گا. جب تک مکمل ریکارڈ نہیں پیش کیا جاتا اسکولز کسی بچے سے فیس وصول نہیں کریں گے. عدالت نے فیس جمع نہ کرانے والے والدین کے خلاف کارروائی سے بھی روک دیا. عدالت نے 14 جنوری کو اسکول مالکان کو تفصیلی فیس اسٹرکچر پیش کرنے کا حکم بھی دیا. دوسری جانب ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ منصوب حسین صدیقی نے تنبیہ کر دی کہ کوئی نجی اسکول 1 ماہ سے زائد فیس ایک ساتھ وصول نہ کرے. ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو کمپلین آئے کچھ آئے کوگنیزنس یہ ہے کہ وہ ہم میجسٹریٹ کو دے دیں گے اور میجسٹریٹ جو ہے قانونی کارروائی کریں گے جس طرح وہ کریں گے. فیس کے بعد جو دوبارہ سے 3 مہینے کو دے دیے ان کو ہم نے لیٹرز بھی دے دیے ہیں, لاسٹ وارننگ بھی دے دی ہے, اور میں سے 4 اسکولوں کا رجسٹریشن بھی میں نے سسپینڈ کر دیا. فیصلہ کیا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے اسکولز کے خلاف میجسٹریٹ کے ذریعے کارروائی کی جائے گی. بلوچستان کے 19 محکموں میں 17.5 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. آڈٹ رپورٹ میں 4.5 کروڑ روپے کے فراڈ کا بھی انکشاف ہوا ہے. زین الدین کی رپورٹ دیکھیے. بلوچستان میں کرپشن کی ایک اور کہانی سامنے آ گئی. آڈیٹر جنرل پاکستان نے صوبے کے مالی سال 2016-17 کے بجٹ کے 144 ارب روپے کی رقم کا آڈٹ کیا, جس میں 17 ارب 43 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. آڈٹ کے دوران 5 ارب 57 کروڑ روپے کا ریکارڈ ہی پیش نہیں کیا گیا. صوبے کے 19 محکموں میں مالی اصولوں اور دیانت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اربوں روپے کے اخراجات کیے گئے. آڈٹ رپورٹ میں تعمیراتی و ترقیاتی کاموں میں 3 ارب 90 کروڑ اور سرکاری وصولیوں میں 1 ارب روپے کے ہیر پھیر کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. صحت, SNGAD, زراعت, لائف سٹیک اور کیل کے محکموں میں قومی خزانے کو 4.5 کروڑ روپے کا چونا لگایا گیا. آڈٹ رپورٹ میں مالیات پر کنٹرول بہتر بنانے اور مالی بے ضابطگیوں کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے. زین الدین, سما, کوئٹہ. رضاکارانہ رقم واپسی کے قانون پر از خود نوٹس کی سماعت. سپریم کورٹ نے قانون میں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو فیبروری تک کی مہلت دے دی. جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیے کہ نیب سڑکوں پر آوازیں لگاتا پھرتا ہے کہ کرپشن کر کے معافی لے لو. ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ. رضاکارانہ طور پر رقم کا واپسی سے مجرم کا جرم کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ تو اعتراف جرم ہے. سپریم کورٹ نے نیب کا رضاکارانہ رقم واپسی کا قانون ختم کرنے کا تہیہ کر لیا. پارلیمان کو قانون میں ترمیم کے لیے فروری کے پہلے ہفتے تک مہلت. عدالت نے واضح کر دیا اگر قانون میں ترمیم نہ ہوئی تو عدالت اسے کالعدم قرار دینے کا اختیار بھی رکھتی ہے.
केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए। नैब इंक्वायरी शुरू करके लोगों को रजाकाराना रकम वापसी के लिए खत लिखता था। सड़कों पर आवाज लगाई जाती थी, करप्शन कर लो और माफी ले लो। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में कानून में तरमीम का हुक्म दिया। 17 साल गुजर गए मगर तरमीम नहीं हो सकी। फारूक एच नायक ने इस्तदा की कि नैब कानून में तरमीम के लिए पार्लिमानी कमेटी काम कर रही है। अदालत फैसले के बजाय पार्लिमान को तरमीम का वक्त दे। जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट जो मुनासिब समझती है तरमीम कर ले, अदालत इसका जायजा लेगी। केस की समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। और PIA की मजीद 20 फजाई मेज़बानों की तालीमी असनाद जाली निकली। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मैट्रिक की सनद की तस्दीक मुतल्लिका तालीमी बोर्ड से की तो मालूम हुआ कि फजाई मेज़बान मैट्रिक फेल हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को सर्कुलर जारी कर दिया जिसमें मुतालिका फजाई मेज़बानों को मुलाजमत से फौरी मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। जाली असनाद पर मुलाजमत हासिल करने वाले 20 फजाई मेज़बानों में एयर होस्टेसेस और स्टीवर्ड्स शामिल हैं। सानहा मॉडल टाउन पर नई JIT काबिल कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का समा से खुसूसी इंटरव्यू में कहना था कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT में पेश होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के JIT बनाने का फैसले का एहतराम करते हैं मगर ये फैसला दुरुस्त नहीं। हमारे मुखालफिन कहते हैं कि जो उस वक्त आप हुकूमत में थे तो इसलिए उस JIT के ऊपर हमें इंसाफ की तवक्को नहीं थी। तो भाई अब आप हुकूमत में हैं, अब दोनों कज़न जो है वो आपस में बातें करके जो है वो JIT बनाएंगे तो उससे हमें इंसाफ की तवक्को कैसे होगी। मेरी ज़ाती राय ये होगी पेश उनको होना चाहिए। उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर जो फैसले भी किए हैं उनको उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी हासिल है और एक ऐसा फैसला जो 32 साल पहले हुआ उस फैसले के ऊपर जो है वो उनके ऊपर कोई कानूनी या अदरवाइज जो है वो ऑब्लिगेशन नहीं हो सकती। ये JIT क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है इसलिए उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई गुंजाइश है कि उसको चैलेंज किया जा सके। सद एहतराम सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये फैसला हमारी नज़र में कानूनी तौर पे दुरुस्त फैसला नहीं। और ये वो जो पिंडी का शैतान है इनको तो जो है वो वुज़ू करके जो है वो मियाँ शहबाज का नाम लेना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने इस्लामाबाद के स्कूल्स में मनशियात के हवाले से शहरियार आफरीदी के बयान का नोटिस ले लिया। अगर डाटा मौजूद था तो अब तक क्या एक्शन हुआ? कमेटी ने वजारत दाखिला से तफसीली रिपोर्ट मांग ली है। इसी पर देखिए आदिल तनोली की रिपोर्ट। जो इस्लामाबाद के टॉप नॉच स्कूल्स का किया गया, 75% बच्चियां वो क्रिस्टल राइस यूज करती हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी के बयान की गूंज सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में भी पहुंच गई। कमेटी अरकान मनशियात के आदि बच्चों की खतरनाक शरह पर तशवीश में मुब्तला। वजारत दाखिला से वजाहत मांग ली। चेयरमैन कमेटी कहते हैं कि अवाम जानना चाहते हैं मनशियात के आदि बच्चों का डाटा कहाँ से आया। सेक्रेटरी इंटीरियर को ये कहा है कि मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें स्टेटिस्टिकल फिगर क्या है और उनके बेसिस क्या थे। अगर ये सूरत हाल है तो फिर हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं इस वक्त तक। रुकन कमेटी जावेद अब्बासी का कहना था कि मनशियात के आदि तलबा और तालिबात की बताई गई शरह बहुत खतरनाक है। वजीर मुमलिकत के बयान के बाद वालिदैन परेशान हैं। अब स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चों के बारे में गलत राय पैदा होगी। वजारत दाखिला को वजाहत करना होगी कि 75% बच्चे किस तरह मनशियात के आदि हैं। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी से पाबंदी उठाने के लिए मोटरसाइकिल पर ही पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। बसंत को महफूज बनाने के लिए मजीद क्या तजावीज़ सामने आई हैं और शहरियों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, ये जानेंगे लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट में। बसंत मनाने का ऐलान पंजाब हुकूमत के लिए बन गया इम्तिहान। कातिल डोर की तबाहकारियां कैसे रोकी जाएं? पंजाब हुकूमत अभी तक तय नहीं कर सकी। जो तजावीज़ सामने आ रही हैं इससे शहरियों का दर्द-ए-सर मजीद बढ़ने का इम्कान है। मोटरसाइकिल के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए दफ़ा 144 के तहत। दूसरा यह है कि मोटरसाइकिलों के ऊपर जो ना एक ऐसा कवर लगा दिया जाए जिसको वो छज्जा सा कहते हैं, जो ना डोर की तबाहकारी से बचने के लिए। तीसरा यह है कि सिर्फ दिन की जो ना ये एक्टिविटी की जाए, रात में पाबंदी लगाई जाए। शहरी कहते हैं एक पाबंदी को खत्म करने के लिए नई पाबंदियां लगाना कहाँ की अक्लमंदी है। जो रात को और दिन को डोरें दरख्तों में खंभों में फंसी होंगी वो ये एक दिन में क्लियर कर देंगे। रात को बाइक पे जो जाते हैं उनके डोर की वजह से गर्दन कटी जा सकती है, ये नहीं होना चाहिए।
पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने के लिए जो कमेटी तश्कील दी है वो भी तजावीज को हतमी शक्ल देने से पहले लाहौर हाई कोर्ट की जानिब देख रही है, जहां बसंत के खिलाफ केस ज़ेर समाअत है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। कराची वालों के मोबाइल फोन इस साल भी महफूज नहीं रहे हैं, क्योंकि कराची पुलिस ने जो 2018 में जराइम का डेटा जारी किया है, इसके मुताबिक इस साल मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में 6% इजाफा हुआ है। शाहनवाज अली से मजीद जानेंगे, बताइए शाहनवाज। और देखिए, बिल्कुल साल 2018 में पुलिस की जानिब से जो है क्राइम डेटा जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है, जबकि इस साल जो है मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों में 6% जो है इजाफा देखने में आया है। 1 जनवरी से 17 दिसंबर तक का डेटा जो है समा ने हासिल किया है। इसके मुताबिक जो है इस साल जो है 432 वाक़यात जो है कत्ल के रिपोर्ट हुए हैं, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है 23% कम है। इसके अलावा टारगेट किलिंग के वाक़यात जो है 5 रिपोर्ट हुए हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 68% जो है कमी देखने में आई है। रवा साल जो है 3 बम धमाके रिपोर्ट हुए हैं, और तावान के लिए बच्चों को अगवा के लिए 10 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इसके अलावा जो है बत्ताखोरी के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जो गुज़िश्ता साल 116 के करीब रिपोर्ट हुए थे। यानी कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम्स में कमी आई है। आपका शुक्रिया शाहनवाज। कराची में 7 साल बाद जमात इस्लामी के टाउन नाजिम के कत्ल का मामला हल हो गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए गए चालान में कहा गया कि मसूद उर्फ काला ने तफ्तीश के दौरान डॉक्टर परवेज़ महमूद की टारगेट किलिंग का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम MQM की टारगेट किलर टीम का कारिंदा है। मुलजिम ने अपनी टीम के साथ डॉक्टर परवेज़ महमूद और उनके दोस्त खलीकुल्लाह को निशाना बनाया। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान ये भी बताया कि डॉक्टर परवेज़ महमूद का कत्ल कराची तंजीमी कमेटी KTC के इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी के कहने पर किया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग से बाप बेटा जान बहक और एक बेटा जख्मी हो गया। पुलिस का ये कहना है कि वाकया डकैती मुजाहिमत का नहीं, मुल्जिमान की तलाश जारी है। लारेब शेख की रिपोर्ट। कराची के इलाके सरजानी टाउन में रात गए 2 मुसल्लह अफराद गरीबों का घर उजाड़ गए। फायरिंग करके बाप अनवर और इसके 22 साला बेटे सलमान को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक और बेटा 28 साला शान भी जख्मी हुआ, जिसकी बीवी ने समा को सारा वाकया सुनाया। इन्होंने कहा भाई अंदर नहीं आओ, हमारी लेडीज सोई हुई है, और उन्होंने खींच कर बाहर ले गए और हाथापाई हुई उनके साथ, और उन्होंने फायरिंग की और गोलियां लगा के चले गए। तीसरा बेटा घर में मौजूद नहीं था। जैसे उसने गेट बजाया, बूट कर आगे और शोर मच रहा, तो मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ का शोर है। यहाँ से भागते भागते लड़ते लड़ते वहाँ से निकल के बाहर आऊँ, और जैसे ही वहाँ से निकल के बाहर आऊँ, फिर तो आपको पता फायरिंग उन्होंने शुरू की। ना तो आवाम आ सकी, ना तो हम कुछ कर सके। पड़ोसी खातून ने बताया कि मकतूल अनवर शोर मचा रहा था कि डाकू उन्हें लूट रहे हैं। इनका जो मियाँ है उसको पहले गोली लगी है, फिर इसके ससुर ने हमारा दरवाज़ा बजाया कि बाहर निकलो, हम लूट रहे हैं, हमें मारने के लिए आ गए। ये हुआ, फिर उन्होंने उधर जाके गोली मार दी इनको भी। पुलिस का कहना है कि वाकया डकैती मज़ाहिमत नहीं, फायरिंग करने वाले मुल्जिमान और मकतूलैन में 2 रोज पहले झगड़ा हुआ था। हमला आवरों ने SMG और पिस्टल से 4 फायर किए। लड़ाई के दौरान सर पर पत्थर लगने से एक हमला आवर भी जख्मी हुआ था। पुलिस वाकये की मजीद तफ्तीश कर रही है। लाहौर में कमसिन बच्ची से मुबैना ज़्यादती और कत्ल के केस में बच्ची के मामू समेत 3 गिरफ्तार मुल्जिमों का DNA टेस्ट होगा। बच्ची की वालिदा उम्रा अदाई के लिए अभी तक सऊदी अरब में मौजूद हैं। जहांगीर खान की रिपोर्ट। नन्ही आयशा को किसने कत्ल किया? पुलिस उलझी हुई गुत्थी सुलझाने में मसरूफ। शुबे में गिरफ्तार बच्ची के मामू और दीगर 2 मुल्जिमों का DNA टेस्ट कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराया और उसके सैंपल वगैरह जो आदि है 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया है। जो उनको शक है मुल्जिमान को वो उनकी शाम तफ्तीश कर रहे हैं। बच्ची की वालदा खामिस अलदगी के बाद अपने भाइयों के पास रहती थी। आयशा का एक भाई भी है जो वालिद की कफालत में है। लाश उधर से बरामद हुई है तो अब तो मुझे शक आएगा ना कि मेरी बेटी कैसे मर गई, कैसे मार दी उन्होंने। अफसोसनाक वाक़े का सुनकर कसूर की ज़ैनब के वालिद से भी रहा न गया। मुतासिरा खानदान के घर पहुँचे और जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। ऐसे हमें ज़ैनब बेटी की तरफ इंसाफ मिला है, इस तरह इनको भी इनकी बेटी के सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब से अपील करेंगे। कत्ल की वारदात के बाद मकतूला के मामू के घर पर ताला पड़ा है, जबकि सऊदी अरब में मौजूद बच्ची की वालदा से भी अभी तक राब्ता नहीं हो सका।
कराची की मकामी अदालत ने शौहर को कत्ल करके सालन बनाने वाली खातून को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। 2011 कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में खातून ने अपने शौहर असद को अपने कजन जहूर के साथ मिलकर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। लाश कहां ठिकाने लगाती, छोटे छोटे टुकड़े करके गोश्त का खाना पकाना शुरू कर दिया। लेकिन लाश से उठने वाले ताफुन पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी तो सारा भांडा फूट गया। 7 साल तक केस चलता रहा। कराची की मकामी अदालत ने जुर्म साबित होने पर खातून को उम्र कैद और इस जुर्म में साथ देने वाले इसके कजन जहूर को 7 साल कैद की सजा सुना दी। कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल कर रहे हैं। समझता हूँ आपका जो चेयर है उसने you've performed your duties well in producing Mr. Saad Rafiq। दूसरा जो तजवीज़ दिया गया है ऑपोजिशन लीडर से कि हम महंगाई के बारे में ऑपोजिशन ने ये तजवीज़ दिया है कि महंगाई के बारे में हम नेशनल असेंबली में डिबेट करें। मैं इस पॉइंट से भी एग्री करता हूं मिस्टर स्पीकर। हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी महंगा, खाने पीने की अशिया महंगा। तो मैं ऑपोजिशन लीडर के साथ इस पॉइंट पर देता हूं कि हमने महंगाई पर डिबेट करना चाहिए। आखिर जो जनूबी पंजाब का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये फख्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब इशू को मेन स्ट्रीम में लाया है। हम पहले पार्टी थे जिन्होंने जनूबी पंजाब के लिए करारदाद ना सिर्फ पंजाब असेंबली में पास किया मगर हमने सेनेट में भी पेश किया और पास भी करवाया था। और आज जो कंसेंसस बन रहा है, ये कंसेंसस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेहनत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एफर्ट से बन रही है। उस बात पे हम बिल्कुल खुश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विजन जो है वो वी आर गाइडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द फेडरेशन एंड आई एग्री with the honourable member from Multan that on the basis of the deprivation of the people of South Punjab, particularly in comparison to their northern neighbours, it is not only their right, they deserve their own province, and I am proud and happy today that it seems that we're moving towards that consensus. I had, in my first or second speech in the National Assembly, brought up that the Pakistan People's Party has already presented a bill on South Punjab. We've already passed this bill from the Senate, and we'd offered the PTI government to adopt our bill, take our bill, and pass it as it was the PTI's government that they would promise that they would deliver on this promise within the first 100 days. Unfortunately, that did not happen. The honourable member from Multan, our foreign minister, is not here, but he had promised me personally that he would write to me on South Punjab. That did not happen. He had promised that he would meet on South Punjab. That did not happen. He had promised that the government would take concrete efforts to try and create consensus for a new province in South Punjab. That did not happen. But I am pleased today that following the leader of the opposition's speech, the government seems to be serious on this issue, and we hope we can deliver in accordance to the aspirations of the people of South Punjab. Finally, Mr. Speaker, I would like to bring to your notice that members of this House are being harassed in the name of the ECL and in the name of a stop list. I would like to appreciate the government's latest U-turn in removing honourable members from the ECL. Such undemocratic, authoritarian measures should not be taken by any government, particularly a so-called civilian elected government, and we hope that such measures will not be repeated further. Thank you, Mr. Speaker. कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। महंगाई के मामले पर अपोजिशन लीडर की भी हिमायत करता हूँ। जनूबी पंजाब के मामले पर पीपल्स पार्टी ने पहले आवाज़ उठाई। गैस, बिजली, खाने पीने की अशिया महंगी हैं। अरकान असेंबली को ECL के नाम पर डराया जा रहा है।
और गाड़ियों के स्याह शीशे होने पर अदाकार हुमायूं सईद का चालान हो गया, लेकिन चालान होने पर बुरा ना बनाया बल्कि पुलिस कारकर्दगी को सराहते रहे। कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने अदाकार हुमायूं सईद का चालान करते हुए 1020 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। हुमायूं सईद ने भी ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को सराहा, कहा जुर्माना अदा कर दिया है। पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी मेरा भी चालान हुआ है क्योंकि मेरे ग्लासेस टिंटेड ग्लासेस थे, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। चालान मैंने भरा है और अगर ये गलत है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।